Good morning, students. Today we will discuss about your last reaction, oxidation and reduction reaction. I think you have already learned about the last reactions, which is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. This one is the last type reaction in your book, which is oxidation and reduction reaction. And in combined form, we can say that redox reaction because it contains a reduction as well as oxidation. So reduction reaction indicate the word red and OX, that means oxidation. So whenever these reactions occur in combined form, oxidation with reduction, it's called a redox reaction. Okay, it's important question. So we will start individually oxidation and reduction. Now, what is an oxidation? Oxidation, that means the addition of oxygen in any reaction and removing of hydrogen. Got it? So in simple term, whenever any substance gain oxygen and loses hydrogen, it's not compulsory that both the cases occur same time, that addition of oxygen as well as losses of hydrogen. It's in option. Got it? So any substance when gains oxygen or loss hydrogen, that it is said to be oxidized. And whenever any substance loses oxygen, opposite just oxidation. So whenever any substance loses oxygen and gain hydrogen, it's called reduction reaction, and that substance is called reduced. Okay, reduced substance. Simple. Now we will take one example of oxidation reaction. So your book contains one activity in which firstly we will take china dish in which we put something of copper powder inside it, then arrange it on a burner and give a heat to this copper powder. So we observe that after some time automatically a black color layer is formed on the copper powder. Okay, so हमने देखा कि कॉपर पाउडर ऑटोमेटिकली किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है जब हम उसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं. ओके, सो वी कैन राइट हियर Cu means copper plus we are giving a heat and as well as we are heating it. So in the presence of oxygen in the atmosphere, it get oxidized. ओके, यानी एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन थी उससे ये रिएक्शन करके ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना देता है. सिंपल. जब आप किसी कॉपर को हीट देते हैं और एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कुछ टाइम के बाद कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जिसका कलर ब्लैक होता है. ब्लैक कलर की लेयर आपको, ब्लैक यानी डार्क ब्राउन और ब्लैक दोनों हो सकता है. ठीक है, ऐसा आपको कॉपर ऑक्साइड का एक सब्सटेंस लेयर मिलती है. किसके ऊपर? जो आपका कॉपर पाउडर था उसके ऊपर. तो फाइनली यहाँ पर रिएक्शन में कॉपर था. कॉपर ने किससे रिएक्शन की? ऑक्सीजन से. सो आई एम राइटिंग हियर O2. ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म, सो इट ऑलवेज कम in the molecular form. Simple. And whenever they reaction, they form CuO, copper oxide. ठीक है, इस पर ब्लैक लेयर मिलती है आपको किसकी? कॉपर ऑक्साइड की. तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो हम इसे बैलेंस करते हैं फर्स्टली. ये इसके कितना एटम है? ऑक्सीजन के 2. पहले कॉपर का एटम देखते हैं. कॉपर 1 एटम, तो प्रोडक्ट साइड भी कॉपर के कितने एटम है? 1 एटम है. ऑक्सीजन के कितना एटम है? 2. बट यहाँ पर कितना एटम है? सिंगल. तो मैं यहाँ 1 से 2 नहीं लगा सकती क्योंकि ये फॉर्मूला बना हुआ है अकॉर्डिंग टू इट्स बैलेंसिंग. ओके, सो मुझे इसको 2 करने के लिए यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन तो ट्वाइस होगी लेकिन उसके साथ साथ कॉपर भी क्या हो गया?
ट्वाइस हो गया। अब उस कॉपर को ट्वाइस करने के लिए मुझे यहाँ पर कॉपर को ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ हमें नजर आ रहा है कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, कॉपर था, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस ऑक्सीजन को गेन किया है। आप देखो कॉपर के साथ क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ गया, कॉपर के कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो कॉपर ने जब ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है ना। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, व्हेन एनी सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सब्सटेंस क्या कर रहा है, कॉपर था, कॉपर ने इस ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, कंपाउंड बना लिया है। तो जब कोई सब्सटेंस कॉपर को ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, है ना। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कॉपर क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Got it? Now we take a common example of oxidation and reduction. ठीक है, मैं आपको उसी में रिडक्शन भी समझा देती हूँ। Now, whenever a hydrogen gas is passed on copper oxide, then it forms, firstly, copper oxide when reacts with a hydrogen gas, okay, yeah, whenever we will pass a hydrogen gas to the copper oxide and provide a heat to this reaction, so automatically this copper oxide break down its compound and give oxygen to the hydrogen gas. Okay, so hydrogen gas reacts with oxygen and forms a water, H2O. Simple. And this copper loses the oxygen, so it forms simple copper compound. Okay. Now two reactions occur in this single reaction. Which one? Oxidation and reduction. Now oxidation कैसे? Because copper oxide, है ना, कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, एक हाइड्रोजन लिया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है। देखिए अब हाइड्रोजन लिया था हमने, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है, अपने पास कंपाउंड बनाया है ऑक्सीजन का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन के पास अगर ऑक्सीजन नहीं थी और उसने ऑक्सीजन गेन कर ली है, तो यहां से हाइड्रोजन से वाटर बनने की रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। सिंपल। नाउ कॉपर ऑक्साइड के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन थी, लेकिन हमने देखा कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो कॉपर ऑक्साइड ने खुद को कॉपर के फॉर्म में चेंज कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो वो कहलाती है रिडक्शन। ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, रिडक्शन। ओके, सो व्हेनेवर कॉपर ऑक्साइड loses its oxygen and convert in the form of copper, it's said to be reduced. Simple. And when hydrogen gain a oxygen and converts in the form of water, so it's said to be oxidized. Simple. Here there are two single example of both the reaction, reduction and oxygen, which is called a redox reaction. अब यहाँ पर दोनों रिएक्शन हो रही है, बट सिंपल में ऐसे क्या कहूंगी, रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी सिंपल। ओके, सो वी नो दैट व्हेनेवर एनी मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, it gets oxidized and it's called a oxidation reaction. It's an important question according to board. And now we will discuss something a different metal. For example, iron, है ना, which is your next topic in your book, which is called rusting of iron.
Okay, that is also called corrosion. है ना? So we see that whenever any metal react with oxygen which is present in the atmosphere, it gets oxidized and form metallic oxide. जैसे कि कोई आयरन है तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सिल्वर ऑक्साइड। आपने देखा होगा जब आप कोई सिल्वर रिंग या कुछ ऐसा पहनते हो ऑर्नामेंट्स, तो अब जब भी देखोगे कि सिल्वर धीरे धीरे क्या होता है, जब आप परचेस करते हो तो बहुत ब्राइट शाइनिंग होती है, लेकिन उसके बाद सिल्वर धीरे धीरे डल कलर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर की जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। हमने अभी एग्जांपल कॉपर वाला भी देखा था, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड, जिसके कारण उसका कलर डल हो चुका। ठीक है, उसी तरह हम आयरन का एग्जांपल ले सकते हैं। आयरन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है एज वेल एज उसे मॉइस्चर भी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्पेशली रेनी सीजन में मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना एटमॉस्फेयर में, तो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट जो बाहर एटमॉस्फेयर में खुली है वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो जाती है और रस्ट यानी कि ब्राउन कलर का पाउडर बनाती है, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और कोरोजन का मतलब ही यही होता है किसी भी मेटल का डैमेज होना, क्षरण होना। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे उसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, लेयर बाय लेयर धीरे धीरे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ब्राउन कलर का पाउडर बनाती है, और वो पाउडर वेस्ट होता है हमारे लिए क्योंकि वो मेटल की जो स्ट्रेंथ है उसे खत्म कर रहा है। ठीक है, सपोज कर लो कोई आयरन शीट है, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन के कारण क्या हो चुका है? रस्टिंग हो चुकी है। अब वो रस्टिंग तो एक ब्राउन पाउडर है ना, फ्लेक्स है ना, जो क्या होता है हवा चलने के साथ या वो निकल जाएगा तो क्या होगा, जो मेन हमारा आयरन है वो आयरन तो लॉस हो गया। अब ऐसा करते करते सेकंड लेयर आएगी, फिर सेकंड लेयर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, फिर रस्ट बना लेगी, थर्ड लेयर रस्ट बना लेगी, ऐसे लेयर बाय लेयर जब वो कांटेक्ट में आता जाता है तो धीरे धीरे वो पूरी शीट को ही खत्म कर देता है। तो ओवरऑल आयरन शीट पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, यानी कोई भी हमारा जो आयरन पार्ट्स है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा अगर रस्टिंग कंटिन्यूसली चलती रही तो आपकी बुक में जो टॉपिक है कोरोजन, कोरोजन का मतलब ही क्या होता है? संक्षारण, जिसका मतलब है किसी भी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाना और उसके बाद वेस्ट हो जाना, डैमेज हो जाना। ठीक है, उसमें आप आयरन के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, अदर मेटल्स के बारे में भी लिख सकते हैं, बट आपकी जो बुक है उसमें आयरन का एग्जाम्पल दिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है? स्पेशली ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ रस्ट का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड कहते हैं Fe2O3.2H2O, इसे भी हम रस्टिंग कहते हैं ना। यू कैन राइट इन योर नोट्स Fe2O3.XH2, X दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉइस्चर और वाटर। ओके, और ये आपका रस्ट का फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी इन योर बुक। रेंसिडिटी दैट मीन्स आपने देखा होगा जब आप कुछ नमकीन है ना, कुछ स्नैक्स लेकर आते हैं बाजार से और कुछ नमकीन लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम पर रखे रहने के बाद उसमें से ऑयल की स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो फूड आइटम है उसके अंदर जितना भी ऑयल और फैट होता है, ठीक है, वो एटमोसफियर से रिएक्शन कर लेता है। एटमोसफियर दैट मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो जो फैट और ऑयल के कंपाउंड है वो भी क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। स्पेशली वो स्नैक्स हम और नमकीन का एग्जांपल क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल ऑयल के अंदर फ्राई होता है, तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, उसके ऊपर ऑयल की लेयर ही होती है। इवन वो फ्राई ऑयल में हो रहा है, यानी कि ऑयल उससे कनेक्ट होता है, उससे चिपका हुआ होता है उसके सरफेस से। तो वही ऑयल और फैट्स होते हैं, वो कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होने के बाद उनमें से उस ऑक्साइड की स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रेंसिड हो जाना। और इसीलिए इस तरह के इंसिडेंट्स को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसीलिए हम हमारे जो स्नैक्स है या नमकीन जो बोल सकते हैं उसे हम एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका ऑयल जो रहेगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और फॉल स्मेल नहीं आएगी। फॉल स्मेल मतलब एक अजीब सी स्मेल, आप उसको सेंस करके देख सकते हैं, जो नॉर्मल फ्रेश नमकीन से अलग होती है। ठीक है, तो हमने इस बुक में ओवरऑल लास्ट के 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इट्स कंबाइंड फॉर्म रेडॉक्स रिएक्शन, एंड corrosion that is called rusting of iron process, and
रेंसिडिटी प्रोसेस। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि कोरोजन और रेंसिडिटी, ये आपको ऐसे टाइप में आंसर में आ सकता है या शॉर्ट नोट में आ सकता है एग्जाम में। ओके, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कोरोजन के लिए। तो कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट पर कोई पेंट अप्लाई कर सकते हो, ग्रीस या ऑयल की लेयर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास especially 6th, 7th, 8th, 9th. Okay, so galvanization, that means covering an iron article with an other metal like a zinc, chromium, nickel. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जिंक या क्रोमियम है, इसकी लेयर से अगर हम आयरन को कवर कर लेते हैं या आयरन के ऊपर इनकी लेयर चढ़ा देते हैं तो इनकी जो रस्टिंग कैपेबिलिटी वो बहुत कम होती है। किसकी, जिंक की और क्रोमियम की। और आयरन की रस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी रस्टिंग कर लेता है, वो जल्दी जल्दी ऑक्साइड्स बना लेता है। तो हम जैसे ही आयरन के ऊपर उसकी लेयर चढ़ा देंगे तो हमारा आयरन आर्टिकल है वो प्रिवेंट रह जाएगा रस्टिंग से। ठीक है, मतलब बच जाएगा रस्टिंग से। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, जिसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के से थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को कैथोड पर रखते हो जिस पर आपको लेयर चढ़ानी होती है और दूसरी ऑब्जेक्ट को आप एनोड पर रखते हो, है ना। इस तरह का आपने एक अरेंजमेंट देखा होगा कि ये मान लो कॉपर है या सपोज कर लो जिंक है, इसकी लेयर आपको चढ़ानी है इस आयरन आर्टिकल पर, तो इसको आपने कैथोड से कनेक्ट कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर लेंगे बीच में। ओके, अब जैसे ही चार्ज से आएंगे तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो ये सारे मेटल के कंपाउंड, और ये सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये ब्रेक डाउन होगा और इसके कंपाउंड जो नेगेटिव कंपाउंड होंगे वो पॉजिटिव की तरफ आएंगे, जो पॉजिटिव कंपाउंड होंगे वो नेगेटिव की तरफ आएंगे, जिसे हम फर्दर आपके नेक्स्ट चैप्टर में है उसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बट आप क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें जिस लेयर की जिस मेटल की लेयर चढ़ानी है उसे आप पॉजिटिव से यानी एनोड से कनेक्ट करते हैं और जिस पर चढ़ानी होती है उसे आप एनोड कैथोड से कनेक्ट करते हैं और इस तरह से यहाँ की मेटल निकलकर इस आर्टिकल पर कंप्लीटली कवर अप कर लेती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म लेयर बना लेती है जिससे कि प्रिवेंशन हो सकता है रस्टिंग से। ओके, तो ये सारे बेसिक एग्जाम्पल थे। ऑयल, ग्रीस और ये तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, पेंट लगा सकते हैं जनरली हमने जो बेंचेस है, फिर हमारे जो विंडो साइड पे वेंटिलेशंस के जो आयरन रॉड्स होती है उसके ऊपर लगा देते हैं कलर, है ना। और बाइक वगैरह या व्हीकल जो है उसके ऊपर पेंट किया हुआ आता है, वो सब रस्टिंग से बचाने के लिए होता है। ओके, और रेंसिडिटी भी बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको समझ में आ चुका है। और नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में। Okay, and now we will continue this chapter with a question answer, and after completion of question answer we will continue chapter 2nd. Okay, thank you.